वो जो ग्रीन स्क्रीन रहती है ना आपके नॉर्मल बैकग्राउंड में पीछे, उस पे ना ग्रीन पे ध्यान जाता है, वो ग्रीन कलर ऐसा है। कर दिया। लो लेटेंसी है तो Hi everyone, good morning guys. I hope I'm audible to all of you. Hi Yogesh, how are you? Good morning. Hi Kunal, good morning, good morning. All right, so let's just start with the today's session here. So I'm very glad to announce the launch of our R2 batch for the CAT 2026 batch here. Now this batch has already launched on first, but the classes are going to commence on the 9th, right? On the 9th of this month, that is 9th of December, right? And you can see here that it's a comprehensive batch, and the classes will be taken by Swapnil sir. So he's Swapnil sir here who will be taking your quant sessions. Brijesh sir will be taking your VRC, and I will be taking your LRDI classes, right? Circle response sheet आ गई है. Got 70 overall. अरे वाह योगेश, that's a very good score यार. Nice. Glad to hear that. So, okay. So talking about the LRDI section, so we'll have live classes with recordings, right? Complete syllabus from the basic to the very advanced level. तो ऐसा नहीं होगा कि हम difficult उससे start करेंगे. We'll start from the very scratch level. एकदम basic चीज़ें पढ़ेंगे पहले, ठीक है? And then slowly and gradually we will increase the level of sets and the difficulty level so that your brain is able to adopt to the difficult sets, ठीक है? तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम आराम मतलब एकदम से हम डिफिकल्ट सेट्स पे जंप करेंगे, ऐसा एकदम नहीं होने वाला है, राइट? along with that, so these 300 plus high quality sets will include your basic sets as well as the advanced level sets, right? 3 physical booklets will be provided, 35 sectionals with video solutions. So that is a part of our, the comprehensive course here. So on our mock portal, you'll get 35 sectionals with video solutions. Along with you'll have 30 full length mocks. So that is something which is included in this, right? And weekly doubt classes with prompt resolution. So we are planning to have weekly doubt classes this year. Along with that, we have a lot of DPPs, ठीक है? तो हम प्रैक्टिस शीट्स देंगे आपको जिसका डिस्कशन लाइव क्लास में हुआ करेगा. तो ऑल इन ऑल लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट विल बी डन इन द क्लासेस हियर, राइट? सो आई होप एवरीबडी इज गुड टिल हियर. ऑल द पीपल हु आर लाइव हियर एक बार फटाफट हाय बोल देंगे. All those who are live here, guys, please drop a hi in the chat box. All right. Okay, chalo. So today we are doing some linear arrangement here. So we'll start with the very basics of linear arrangement. अब यहाँ पे before I get into a very small puzzle, ठीक है, एक छोटा सा puzzle हम discuss करेंगे. But before I get into that, I would want to make you well versed with some repeated statements that are very common in linear arrangement. ठीक है, कुछ ऐसे statements होते हैं जो linear arrangement में बार बार आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है? And at times स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है उसमें कि कैसे स्टेटमेंट को इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है. तो वील फर्स्ट हैव अ वॉक थ्रू थ्रू ऑल द स्टेटमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, एंड देन प्रोबेबली आई विल मूव टू अ वेरी स्मॉल पजल दैट वी विल सॉल्व इन द टुडेज सेशन, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट्स हियर. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट मैं बात करने वाला हूँ इट्स अबाउट द एंड्स एंड द एक्सट्रीम्स, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ए सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट एंड, ठीक है? तो एक्सट्रीम लेफ्ट इन पोजीशन वन, राइट? एंड एक्सट्रीम राइट इज द लास्ट पोजीशन, राइट? देन सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. नाउ व्हेन आई से ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स,
it implies कि he can be sitting at either at the extreme left और at the extreme right. तो आपको यहाँ पे दो केसेस बना के चलना पड़ेगा, राइट? अब हमेशा याद रखना एक चीज़ कि कभी भी केसेस बनाने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है? डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन वन केस इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आप जैसे मान लो 5 लोग का सीटिंग अरेंजमेंट है। अब आई एम सेइंग कि ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा दिमाग में रखता हूँ कि यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे भी ए आ सकता है। Rather make two cases. Put A here in one of the case and make a second case in which you can put A over here. So always split cases. उसको लिखो वहाँ पे, ठीक है? Then it says A does not sit at any of the extreme ends, right? A cannot be in position 1 or n. तो इसका implication क्या है कि A जो है मेरा वो फर्स्ट पोजीशन, और जैसे लास्ट पोजीशन को मैंने n माना था तो लास्ट पोजीशन पे भी नहीं आ सकता। तो A is going to occupy one of these middle seats here, ठीक है? अब इसका रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट क्या है यहाँ पे कि व्हेन आई से A does not sit at any of the extreme ends, तो आप यहाँ पे A बार लिख सकते हो, ठीक है? सो व्हेन आई पुट अ बार ऑन द टॉप, इट इम्प्लाइज कि A यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है? A is not going to sit here, alright? Now let's see it further here. लेफ्ट एंड राइट फेसिंग डायरेक्शन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट क्या होने वाला है, राइट क्या होने वाला है, ठीक है? सो इफ़ ऑल द पीपल इन द अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ, राइट, देन योर नॉर्मल लेफ्ट टू राइट डायग्राम वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज द लेफ्ट एंड एंड दिस इज द राइट हैंड, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल आई से ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए बी के जस्ट बगल में बैठा है, ठीक है? ए इज समवेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ बी, ठीक है? अगर मान लो मैंने बी को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ए आपका यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। सो इट इज नॉट द केस कि व्हेन आई से कि ए सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब वो एकदम बगल में बैठा है। ए लेफ्ट साइड में कहीं पे भी आ सकता है, राइट? So it does not imply that he is necessarily adjacent, right? So always remember this, ठीक है? Now A is to the immediate left of B और A sits just left of B। अब जब आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा that means A is to the immediate left of B, तो ये ऐसे ही यहाँ पे आपका अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट होने वाला है, ठीक है? So A sits to the left of B is in the arrangement in this particular fashion, ठीक है? Now A is second to the left of B। अच्छा, अब when I say A is second to the left of B, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 people, right? अब A is let's say B is here, okay? Now when I say A is to the second left of B, तो ये वाली जो सीट है मेरी, ठीक है, इसके बगल वाली, this is the first left, then this is my second left here, so A is to the second left of B। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि A और B के बीच में दो पोजीशंस खाली हैं, ठीक है? When you say that A is to the second left of B, it does not imply कि A और B के बीच में दो पोजीशंस हैं, rather it implies that there is a gap of exactly one between A and B here, right? ना इफ फेसिंग साउथ, अब मान लो अगर सारे लोग साउथ फेस कर रहे होते, ठीक है, तो ये आपका राइट एंड हो जाता और ये वाला एंड आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है, ठीक है? सो दिस वुड बी योर राइट हैंड एंड द अदर एंड वुड बी योर लेफ्ट हैंड। व्हाई? बिकॉज राइट रिवर्सेस, लेफ्ट एंड राइट रिवर्सेस ऑन द पेपर। सो इफ एवरीबडी इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, राइट? नाउ व्हेन पीपल फेस साउथ, देयर लेफ्ट इज योर राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, राइट? नाउ so when I say A is to the left of B and facing south, means place B, then put A on the right side in your diagram, ठीक है? तो when everybody is facing south, then you put B and then you put A on the right side of your diagram because everybody is facing southwards here, ठीक है? So these are the few important statements in the left and right facing जो आपको पता होने चाहिए। I mean you should be very much comfortable with these statements क्योंकि time and time again you will come across these statements when you're solving sets on linear arrangement here, ठीक है? चलो let's move ahead to the third now. Now neighbors and adjacent people, right? Now this is again very important. So when I say A is next to B, A sits beside B और A is adjacent to B, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले A आएगा और फिर B आएगा। It can also imply that the arrangement can be B and A in this particular fashion, ठीक है? So when I say A is next to B or A sits beside B, तो यहाँ पे any of the two combinations are possible, but there should be no gap between them, right? That means A and B sit side by side, one seat gap is equal to 0. There is no gap at all, right?
Now A is an immediate neighbor of B. So if A is an immediate neighbor of B, तो A B के लेफ्ट में भी हो सकता है, A B के राइट में भी हो सकता है. So again it is exactly the same arrangement here. ठीक है. Now A is not an immediate neighbor of B. So A is not an immediate neighbor of B. तो इसको आप represent कैसे कर सकते हो? You can write it as A B and put a bar on the top. ठीक है. तो बार का मतलब क्या हो गया कि A और B साथ में नहीं बैठते हैं. ठीक है. So A and B cannot be side by side. At least there should be one seat between them. All right. Now, the people who are live here, can you guys, respond if you guys are able to follow? अच्युत, इंग्लिश बैच वी विल हैव डेफिनेटली. ठीक है, करेंगे हम इंग्लिश बैच बाद में लेटर, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव अ इंग्लिश बैच लॉन्चिंग. अभी ये दिस इज अ बैच वेयर वी हैव इंग्लिश, दैट इज, it will be a mix of Hindi and English itself, right? Now, I hope everybody is good till here and all of them are able to follow. Okay. Now, the next one is C sits between A and B. Now, when you say C sits between A and B, C can be between A and B in this particular fashion, with A starting and then B बाद में, या फिर इस फैशन में भी आ सकते हैं. ठीक है, with no one else between A and B. So C sits between A and B का मतलब है कि या तो ऑर्डर आपका ये हो सकता है and A and B can interchange their positions here. ठीक है. Now, C sits exactly between A and B, same as above. Okay, there's no difference between C sits between A and B and C sits exactly between A and B. But this happen usually in odd number of seats. A and B are equal at equal distance from C. ठीक है, तो अगर C को आपको exactly between में बैठाना है between A and B, तो that means कि ये odd number of seats में होता है. For example, अगर मान लो 5 सीट्स हैं. ठीक है, तो C यहाँ पे हो गया एंड A एंड B कैन बी एट द एक्सट्रीम एंड, तो ये एग्जैक्टली मिडिल में हो गया. तो इस पॉइंट को अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ सीट्स, और एंड यस A और B आपस में अपनी पोजीशंस यहाँ पे इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. Number of people between. Okay, now let k persons are between A and B, there are k seats between them. तो अगर k persons हैं A और B के बीच में, तो उनके बीच में k seats भी होंगी. For example, if I say exactly one person sits between A and B, तो इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में एक का गैप है. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि A और B अपनी पोजीशंस आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी द वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स है. ठीक है. ना एग्जैक्टली टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली टू पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड बी, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी और दिस इज अ पॉसिबिलिटी. तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है गाइस कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन लीनियर अरेंजमेंट ना, तो आपको स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अनटिल आप उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो ना, तो आपका यू विल नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर सेट इन वन गो, और फिर सेट को बनाने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. राइट. नाउ व्हेन आई से ओनली 3 people, ओके, sit between A and B. So again, you can see here there's a gap of 3 between A and B, right? Now, at least 2 persons sit between A and B. अब at least का मतलब क्या होता है guys? So at least का meaning होता है कि कम से कम, bare minimum, okay? So when I say at least 2 persons sit between A and B, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि A और B के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हों, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में 3 लोग आके बैठ जाएं. ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में 4 लोग आके बैठ जाएं. तो मिनिमम तो 2 लोग होने चाहिए, राइट? लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया, ए और बी के बीच में एक ही इंसान बैठा है, तो दिस इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज इट सेज एटलीस्ट 2 पर्सन, सो गैप ऑफ 2 और मोर सीट, या कम से कम 2 सीट का गैप हो, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है. ठीक है. सॉरी. At most 2 persons sit between A and B. Now when you say at most 2 persons, इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि या तो एक इंसान बैठ जाए, ठीक है, या फिर कोई भी ना बैठे, दोनों अगल बगल बैठ जाएं, राइट, या फिर 2 लोग बैठ जाएं. ये सारे अरेंजमेंट्स, ये तीनों अरेंजमेंट मेरे लिए वैलिड अरेंजमेंट है इफ द कंडीशन सेज एट मोस्ट 2 people सिट बिटवीन ए एंड बी. लेकिन अगर मैंने 2 से ज़्यादा का गैप बढ़ाया, फॉर एग्जांपल इफ आई पुट समथिंग लाइक ए एंड देन मैंने 3 का गैप कर दिया, सो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, ये मेरा गलत है. दिस इज नॉट हैपनिंग, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्टेटमेंट्स दैट यू आर रीडिंग, और उनको आप सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर. Now, relative order is something which is, creates the maximum confusion. ठीक है, सबसे ज़्यादा confusion जो होता है आपका वो relative order में ही होता है. For example, when I say here
ए सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो अब समवेयर टू द लेफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि ए बी के बगल में ही बैठ गया है। समवेयर टू द लेफ्ट मतलब अगर बी इधर बैठा है तो ए लेफ्ट में कहीं पे भी बैठ सकता है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि समवेयर टू द लेफ्ट या फिर ए सेट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी दोनों ही एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो इनका मतलब ये नहीं होता कि एकदम बगल में आके बैठ गया है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं होता, राइट। इट मीन्स समवेयर टू द लेफ्ट, ठीक है। नाउ व्हेन आई से ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो अब बहुत कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। दो का गैप किया और ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। ए सिट्स सेकंड टू द राइट, तो अगर मान लो बी यहाँ पे बैठा है तो उसके फर्स्ट राइट में ये वाली पोजीशन आएगी जहाँ पे कोई बैठा होगा, फिर उसके सेकंड राइट में ये वाली पोजीशन आएगी जहाँ पे ए बैठा होगा। तो सेकंड टू द राइट मीन्स देयर इज अ गैप ऑफ एग्जैक्टली वन बिटवीन द टू पीपल, राइट। सिमिलरली मैंने से ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो अब ए बंदा एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और थर्ड टू द लेफ्ट, तो मतलब थर्ड टू द लेफ्ट का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास एग्जैक्टली दो का गैप आने वाला है, ठीक है। सो देयर शुड बी अ गैप ऑफ टू सीट्स, राइट। ऐसी कभी कभी होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ स्टेटमेंट हियर, जॉन लिव्स टू फ्लोर्स अबव क्रेग, ठीक है। नाउ जॉन लिव्स टू फ्लोर्स अबव क्रेग, तो अगर क्रेग इस वाले फ्लोर पे रह रहा है, तो ऐसा नहीं कि जॉन दो फ्लोर ऊपर का मतलब ये नहीं कि जॉन, मान लो क्रेग अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहा है तो जॉन यहाँ पे आपका फोर्थ फ्लोर पे रहा है, ये तो तीन फ्लोर ऊपर हो गया, ठीक है। सो व्हेन आई से जॉन लिव्स टू फ्लोर्स अबव क्रेग, इसका मतलब ये है कि अगर क्रेग मेरा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, लेट्स से, ठीक है, इफ क्रेग इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, देन ए बंदा सेकंड फ्लोर पे रह रहा होगा और थर्ड फ्लोर पे जॉन रह रहा होगा। सो व्हेन आई से जॉन लिव्स टू फ्लोर्स अबव क्रेग, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर का गैप है, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ पे गैप का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो रिलेटिव ऑर्डरिंग वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना लीनियर अरेंजमेंट में जो आपको मिलते हैं, दैट इज समथिंग विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड ट्रबल, और यहीं पे लोग गलती करके आते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, द चेन रिलेशन। अब आपको ना बहुत बार चेन रिलेशंस मिलेंगे अपने लीनियर अरेंजमेंट में, जैसे कि सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो सी जो है वो बी के इमीडिएट राइट में बैठता है, ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब मान लो अगर डी यहाँ पे बैठा है तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट सी है। तो ये चेन रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप इनको ब्रेक करके यू हैव टू लिंक देम इन अ सिंगल लाइन इन दिस पर्टिकुलर फैशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना होता है कि जब भी आपको चेन रिलेशन मिलेगा यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन अ स्टेप बाय स्टेप फैशन, आपको उसको ब्रेक करके चलना पड़ेगा, ठीक है। Now let's move ahead to the next one. Now quantifiers, जो मैंने आपको बताया at least at most we have already discussed this, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ exactly k people sit between A and B, तो only k, कोई और केस नहीं बन सकता। if I say at least k people मतलब कम से कम k तो बैठेंगे, उसके ऊपर कितने भी बैठ सकते हैं, राइट। when I say at most k तो मतलब maximum k तक लोग बैठ सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है बट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द वर्ड्स एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज समथिंग, फॉर एग्जांपल ऐसे कंडीशंस आएंगे एटलीस्ट टू पर्सन सेट बिटवीन ए एंड बी, तो कम से कम दो लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में तीन लोग बैठ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में चार लोग बैठ जाए, राइट। बट कम से कम दो बैठेंगे। एटमोस्ट वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी, या मतलब या तो बी और सी अगल बगल बैठ रहे हैं, ऑब्वियसली पोजिशन इंटरचेंज हो सकती हैं, ठीक है, या फिर एक आदमी बैठ सकता है, एक के ऊपर नहीं जा सकते यहाँ पे, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल हियर, ऑलराइट। नाउ so, restriction and negative clues are something that play a very important role in solving a linear arrangement. तो बहुत बार क्या होता है ना, लोग नेगेटिव क्लूज जो होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। दे टेंड टू इग्नोर द नेगेटिव क्लूज, राइट। तो जैसे मान लो पहला क्लू है ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि आपको इसको दिमाग में फीड करके रखना है, ठीक है। यू हैव टू पुट अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कि भाई ए और बी साथ में नहीं बैठते हैं, दे डोंट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। एलिमिनेट ऑल अरेंजमेंट्स विद ए बी और बी ए एडजेसेंट, ठीक है। तो ये आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा द ऑल द अरेंजमेंट्स विच आर इन द दिस पर्टिकुलर फैशन, ठीक है। नाउ
only one of A and B sit at extreme ends. So only one of A and B sit at extreme end का मतलब ये है कि other cannot be at the end, ठीक है? तो ये भी ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा अपने लीनियर अरेंजमेंट के पजल्स में, ठीक है? एग्जैक्टली टू ऑफ द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ए बी सी डी, तो इनमें से आप कोई भी दो पेयर लो बैठ सकते हैं, ठीक है? सो यू हैव टू चूज एनी टू, नाउ द कॉम्बिनेशंस कैन बी ए बी हो सकता है, राइट? ए सी हो सकता है, ए एंड डी हो सकता है, ठीक है? बी एंड सी हो सकता है, बी एंड डी हो सकता है, सी एंड डी हो सकता है, सो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन पॉसिबल, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पे आपका एक्सट्रीम एंड्स में बैठ सकता है, एंड इट कैन बी एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, वेदर द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड, राइट? सो दीज आर सर्टेन रूल्स जो आपको पता होना चाहिए. Boomer is saying, says score 36 in a day. I guess I'll get around 99.9, but chode VRC again. Feeling very bad after yesterday. Won't make it to the top college this year. Aiming for the Zad and will DM if I convert. Definitely आप मुझे definitely DM करो, ठीक है? And 36 यार बहुत अच्छा स्कोर है. I'm like so happy to read your score here. And कोई बात नहीं, VRC अगर थोड़ा सा खराब गया, and remember कि अभी और भी एग्जाम्स हैं देने के लिए, है ना? You have ZAT, you have SNAP, you have NMAT. तो डोंट फील डीमोटिवेटेड, थोड़ा सा डिमोरलाइज नहीं होना है आपको. आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि यू विल डू बेटर, राइट? हाँ जी योगेश, बताओ, टेल मी. Alright, so here I have a puzzle for you guys. Now it's a very small seating arrangement puzzle, and I'll give you 7 to 10 minutes to solve this puzzle, ठीक है? And post 7 minutes we'll start with the discussion here, ठीक है? तो I'll give you 7 minutes. Let's try this puzzle here, everybody. एक बार सब लोग रीड करेंगे जितने लोग लाइव हैं यहाँ पे, and then we will discuss this, ठीक है? Yes, we'll have a English batch for cat, ठीक है? We'll definitely have a English batch for cat. We'll launch it later. थोड़ा slightly late launch करेंगे, but we'll have a batch, ठीक है? So you don't have to worry about the English batch thing, and you can definitely enroll when it is launched. Even if you want, you can enroll it at the moment, and later you can shift to the English batch. So we give that flexibility, of shifting to a different batch. So that shouldn't be much of a challenge for you. All right, guys, please try to solve this particular set here. Yogesh, I'm waiting for your text here. All right, so is anybody trying this puzzle here? Any one of you who's trying to solve this puzzle here? It's a very quick linear arrangement puzzle with a basic, explanation of whatever we have learned so far, all the statements that we have done. This line here is not necessarily in the same order. Okay, there's my image on the top. तो इस वजह से वो वहाँ पे छुप गया है. Hi Nilind, how are you? I'm good, yeah. Good morning, how's everything?
नहीं, इतना भी स्किल डाउन नहीं होगा यार, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितना भी स्किल डाउन होगा, बिकॉज अभी भी यू डोंट हैव इनफ डेटा, ठीक है। until is the data that is come, people are still feeding their scores है ना percentile predictors पे, तो अभी you cannot predict on that basis, right? ठीक है, सो इतना लोड नहीं लेना है। डेफिनेटली आई थिंक स्लॉट वन थोड़ा सा स्केल अप होगा, स्लॉट टू थोड़ा, स्लॉट थ्री भी थोड़ा स्केल अप होना चाहिए, ठीक है। स्लॉट टू थोड़ा सा स्केल डाउन हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि क्रेजी स्केल डाउन होने वाला है, सो डोंट रिलाई ऑन दोज थिंग्स। आई मीन आई वुड से कि जस्ट कीप योर काम, एंड जो भी स्कोर है, ठीक है, जस्ट रिलैक्स अ लिटिल, है ना, लेट द स्कोर बी नाउ। यू हैव अदर एग्जाम्स टू राइट, अभी जैट है, स्नैप है, मैट है। तो अगर आप अभी अपने इस चीज़ों पे, इफ़ योर थॉट्स रिवॉल्व अराउंड कि मेरा कितना स्कोर स्केल अप होगा, कितना स्केल डाउन होगा, कितना परसेंटाइल बनेगा, तो इन सब चीज़ों में ना यू विल लूज द द फोकस ऑन द एग्जाम्स दैट आर कमिंग योर वे, राइट। तो मेरा सजेशन तो यही है आप लोगों को कि अभी आप अपने सिर्फ फोकस रखो उसी चीज़ पे जो आपको करना है, विच इज़ योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, है ना। जब एक बार जैन में आपका ज़ैट ख़त्म हो जाएगा, रिज़ल्ट आ ही जाएगा, राइट, देन यू कैन डू योर कैलकुलेशंस कि आपको जाना है, नहीं जाना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। बिकॉज़ ऐसा होता है कि मतलब अगर आप आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट भी कर देगा, राइट। शीश, अगेन आपको भी मेरा सेम सजेशन यही है कि इफ़ यू फील दैट कैट 2025 हैज़ नॉट वर्कड आउट वेल फॉर यू, तो स्टिल यू हैव दैट टू गिव, स्टिल यू हैव अ स्नैप टू गिव, है ना, एंड मैट भी है आपके पास। तो बाकी एग्जाम्स पे आप ध्यान दो, ठीक है। आई मीन द कॉलेजेस थ्रू दीज एग्जाम्स आर इक्वली गुड, राइट। आई मीन द नंबर ऑफ कॉलेजेस आर लेस, बट स्टिल एक्सेलराई इज एज गुड एज आई एम लखनऊ, राइट। I can say that XLRI, I am Lucknow और FMS Delhi, all the three colleges are on the similar lines, है ना। तो आप इन तीन में से कहीं भी जा रही हो, you're gonna do really well. SIBM is also a tier one college जहाँ पे आपको you get a decent package, the faculties are good, the curriculum is great, alumni base भी अच्छा है, तो you shouldn't feel demotivated at this point of time. Since slot 3 I panicked a little. Cause was not able to solve second set, गलत सेट पिक कर लिया, सो आई वाज कंफ्यूज कि अच्छा गया या नहीं, बट सर्कल वॉल देखकर इट मेड मी हैप्पी। डेफिनेटली यार, देखो हार्ड वर्क कहीं ना कहीं आपको अच्छा आउटकम देता ही देता है, राइट। सो यू वेन एवर सी, आई ऑलवेज से वन थिंग कि आपको किसी ना किसी फेज में अपनी लाइफ के हार्ड वर्क करना पड़ता है। या तो आपने जब आपने अपना 12th किया तब आपने मेहनत करी होती, तो आप अच्छे अंडर ग्रेड कॉलेज पे जाते हैं, राइट। या फिर अगर आपने तब मेहनत नहीं करी, आप जॉब में मेहनत करोगे, जॉब में नहीं करी तो एमबीए के प्रेप के टाइम मेहनत करोगे। अगर आपको अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करना है फॉर गुड, यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू हैव दैट लग्जरी इन योर लाइफ, आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, राइट, प्लेन सिंपल लाइफ, तो यू हैव टू वर्क हार्ड एट वन फेज ऑफ लाइफ, है ना। और मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती यार, दिस इज समथिंग विच आई अबाइड बाय कि एनी हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन टुडे, somewhere or the other down the line it is gonna give you results, ठीक है। तो never step back from working hard. Lost cat but give all. Yes, yes, definitely Jayesh, है ना, that is should be your thinking at the moment. सर एनएमएस मुंबई सही रहेगा क्या, बिकॉज उसका बैच साइज बहुत बड़ा है एंड उसके प्लेस में फिट कर सकते हैं ना सर। सी मोनिश, आई वुड से कि एनएमएस बैच साइज डेफिनेटली बड़ा है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, इट्स इन द विले पार्ले इन मुंबई, तो वहाँ पे रहना एंड ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव टू बियर, दैट इज समथिंग विच विल डेफिनेटली impact things, right? But again, given the fact ki NM is a very has its own legacy, and कॉलेज वाइज आई वुड से कि अभी इस साल अच्छा कर रहा है कॉलेज, राइट। सो एन एम एस इज डूइंग गुड, डिसेंट कॉलेज है। अगर आपको इसी साल ज्वाइन करना है एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है, आप चाहते हो कि इसी साल आप एडमिशन ले लो, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव any other year for this, then I think you should go for an MRS. It's not that bad a college, right? And आप किसी भी अच्छे मतलब colleges like this जिनका alum base strong है, तो अगर आप अच्छा करोगे आगे चल के, तो यू विल अल्टीमेटली ग्रो इन योर करियर, बिकॉज इट इज अ गुड स्टैम्प ऑन योर सीवी, राइट। So yesterday when I told my mom that cat I scored good, my oh, I know it's यार, I can relate to this योगेश, क्योंकि ना पेरेंट्स के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। दे हैव ऑलवेज expected us as kids to perform well,
whether it is anything that we go for, you know, their well wishes are always there. And whenever we succeed in something, so it's a you know a moment very emotional for them. Okay, like for example, when I passed out of my engineering, so I was struggling. Today I'm in a very better position, so I see that happiness on my parents face. So you know things, when they get better in your life, so your parents also feel much more comfortable and they are very much, you know, stress free. तो ये चीजें होती हैं, ठीक है. Yes, yes, Yogesh, all the very best for Snap. Sir, RC and LRD में set on choose हो गए तो पैनिक में कुछ नहीं. See, this is something that I have been telling you for the entire year कि आपको अपना काम रखना पड़ता है एग्जाम में. If you feel कि आप पैनिक कर रहे हो तो आप एक डीप ब्रेथ लो, है ना, टेक अ पॉज ऑफ अ मिनट एंड देन अगेन रीस्टार्ट. अगर बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो स्विच टू द नेक्स्ट सेट. सो दीज आर समथिंग दैट वी हैव बीन टेलिंग यू रिपीटेडली फॉर द एंटायर ईयर, राइट. तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ लर्निंग फॉर यू. बाकी आगे के एग्जाम से उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट. चलो, नाउ कमिंग बैक टू दिस सेट, अब फटाफट इस सेट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो एनीबडी हु सॉल्व कैन गिव मी द आंसर्स हियर एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट हियर, ठीक है. नाउ इट सेज Pooja, Kadir, Rohan and Simran are librarian, electrician, designer and chef, okay, by profession, not necessarily in the same order, ठीक है. तो चार लोग हैं, चार प्रोफेशन है मेरे पास, ऑलराइट. Each of them lives in a different house among the four adjacent houses that lie in a row, ठीक है. तो यहाँ पे चार लोग चार हाउसेस में रहते हैं, दैट लाइन अ रो. सो ऐसे हाउस नंबर 1, ओके, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4, ठीक है. एंड दीज आर द फोर हाउसेस दैट लाई इन अ रो. ईच हाउस हैज अ डिस्टिंक्ट कलर अमंग रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सो वी हैव द नेम्स ऑफ द पीपल, राइट. वी हैव द प्रोफेशन ऑफ द पीपल एंड वी हैव द कलर ऑफ द हाउसेस, ठीक है. अब देखो टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप टेबल कैसे रिप्रेजेंट करो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, तो मैं नेम में ही यहाँ पे इनिशियल्स लिख लूंगा कि मुझे क्या क्या नेम फिल करने. सो ऐसे पी, क्यू, आर एंड एस, दीज आर द फोर नेम्स दैट वी हैव हियर, राइट. अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इनिशियल्स वापस से लिख लूंगा, दैट इज लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रिशियन, डिजाइनर एंड शेफ, ठीक है. तो ये चार नेम्स हो गए, राइट. सिमिलरली आई हैव फोर कलर हाउसेस, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट. सो यहाँ पे मैं कलर में भी उसके इनिशियल्स लिख लूंगा, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट. तो मुझे पता होगा कि मुझे इस रो में क्या वैल्यूज फिल करनी है. सो आई डोंट हैव टू गो बैक टू द सेट अगेन एंड अगेन, राइट. अच्छा, अब वी हैव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. लेकिन उससे पहले अगर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन हु स्टेज इन द ब्लू हाउस, दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है. हु इज द शेफ अमंग द फोर पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, प्रोफेशन, हाउस कलर. हु लिव्स इन द थर्ड हाउस फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है. तो अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना मेरे क्वेश्चंस के, ये मुझे ये चीज यू नो रियलाइज करा रहे हैं कि सेट में मल्टीपल केसेस तो नहीं बनने वाले हैं, ठीक है. सेट में एक ही केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मेरे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. अगर यहाँ पे मान लो इफ ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इफ दिस पर्सन सिट्स हियर देन व्हाट इज द पर्सन सिटिंग हियर, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि मुझे मल्टीपल केसेस के डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है. तो जब आप एक सेट को पढ़ते हो ना, तो डोंट जस्ट रीड द स्टोरी पार्ट ऑफ इट, द क्लोज पार्ट ऑफ इट. आप उसके क्वेश्चंस भी पढ़ो, सो दैट यू गेट एन हैंग ऑफ इट, गेट एन आइडिया ऑफ इट कि सेट आपका किस डायरेक्शन में जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली यू नो यू कैन प्रोसीड विद द सेट, ठीक है. तो यहाँ पे अभी सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. सो इट सेज पूजा इज नॉट अ शेफ, ठीक है. तो पूजा इज नॉट अ शेफ, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है, दैट पूजा इज नॉट अ शेफ, ठीक है. क्योंकि अभी मैं इसको अपनी टेबल में प्लेस नहीं कर सकता, तो मैंने इसको अलग से नोट कर लिया, ठीक है. एंड शी लिव्स इन द हाउस एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो. अब ये मेरे पास एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है जो मेरी डायरेक्टली टेबल में जा सकती है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे पूजा डाल दिया, दिस इज पी हियर, ठीक है. एंड शी लिव्स इन द हाउस एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, राइट. नाउ द इलेक्ट्रिशियन स्टेज beside the designer and the librarian, ठीक है. जो इलेक्ट्रिशियन है वो stays beside the designer and the librarian. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिशियन जो है, ठीक है, the electrician is exactly in between the designer and the librarian, ठीक है. अब ये ऐसे भी हो सकता है
या फिर यहाँ पे ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज भी कर सकते हैं. सो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट? सो इलेक्ट्रिशियन स्टेज बिसाइड द डिजाइनर एंड द लाइब्रेरियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन जो है वो डिजाइनर और लाइब्रेरियन के बीच में आने वाला है. अब वो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है? नाउ फर्दर इट सेज कादिर इज अ डिजाइनर एंड ही स्टेज इन अ ग्रीन हाउस बिसाइड द शेफ्स हाउस, ठीक है? R1 एंड R3 के टीचर्स, अभी तो R2 लॉन्च हो रहा है, ठीक है? सो R1 में रवि सर और केडी सर हैं, ठीक है? R2 में मैं, स्वप्निल सर और ब्रिजेश सर है, ठीक है? सो आई टीच LRDI, राइट? स्वप्निल सर टीचर्स क्वांट एंड ब्रिजेश सर इज टेकिंग वीआरसी इन दिस पर्टिकुलर बैच. फिर जब R3 बैच आएगा तो वील लेट यू नो व्हाट आर द फैकल्टीज हु आर टेकिंग द पर्टिकुलर बैच है, ठीक है? ओके. नाउ कादिर इज अ डिजाइनर, ठीक है? कादिर इज अ डिजाइनर एंड ही स्टेज इन अ ग्रीन हाउस बिसाइड द शेफ्स हाउस, ठीक है? तो कादिर जो है वो डिजाइनर है, ओके? एंड ही स्टेज इन द हाउस बिसाइड द शेफ्स हाउस, ठीक है? सो डिजाइनर जो है वो शेफ के बगल में है, तो अगर यहाँ पे डिजाइनर तो यहाँ पे शेफ आएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे डिजाइनर तो यहाँ पे शेफ आएगा. सो वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन विल बी एप्लीकेबल. या तो ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिट होगा, ठीक है, प्रोफेशन का इस पर्टिकुलर रो में, या फिर ये सेकंड वाला फिट होगा. क्यों? क्योंकि कादिर इज अ डिजाइनर एंड ही स्टेज इन द ग्रीन हाउस बिसाइड द शेफ हाउस, ठीक है, शेफ के बगल वाले घर में. अब रोहन स्टेज इन अ व्हाइट हाउस एंड ही इज नॉट एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है? So Rohan is stays in the White House. That is a fixed information which I have, and he is not an electrician. ठीक है? अब देखो गाइज, यहाँ पे एक पॉइंट किया क्या मैंने बोला आपको कि या तो ये वाला स्टेटमेंट फिट होगा, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन या ये वाला कॉम्बिनेशन. अगर आप पहला कॉम्बिनेशन लेके चलते हो, दैट इज आपने यहाँ पे शेफ रखा, यहाँ पे डिजाइनर, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पे लेट से आपने रख दिया लाइब्रेरियन, ठीक है? तो इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर इज कि पहला ही स्टेटमेंट मेरा क्या बोलता है? पूजा इज नॉट अ शेफ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पूजा इज नॉट अ शेफ. तो अगर आपने ये वाला कॉम्बिनेशन लेके रखा है जहाँ पे आपने शेफ को डिजाइनर के बगल में रखा है, तो यहाँ पे पूजा विल अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी अ शेफ. बट दिस इज नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन. ये मेरा पहली वाली कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है. तो इन दैट सिनारियो आई कैन नॉट टेक दिस फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन. तो मुझे ये कॉम्बिनेशन को रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है? सो इफ आई हैव टू रूल आउट दिस कॉम्बिनेशन, दैट इम्प्लाइज कि मेरा यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली नहीं आ सकता, ठीक है ना? सो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, यस यस राइट नीलेन, ठीक है? तो दैट मीन्स मुझे सेकंड वाला कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा. हाय अर्नव, अर्नव डेफिनेटली यार, वी टेक लॉट ऑफ वर्कशॉप्स अक्रॉस बैचेस, तो हम डेफिनेटली मिलेंगे किसी ना किसी क्लास में वेरी सून, ठीक है? सो वील डेफिनेटली स्टडी इन वन ऑफ द बैचेस एंड काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट आई शुड गो विद, राइट? अच्छा, द मोमेंट आई प्लेस दिस कॉम्बिनेशन, तो मुझे पता है कि कादिर इज अ डिज़ाइनर, तो यहाँ पे कादिर आ जाएगा, ठीक है, राइट? एंड ही स्टेज इन अ ग्रीन हाउस बिसाइड द शेफ्स हाउस, ठीक है? तो ये जो हाउस का कलर है, दिस इज द ग्रीन हाउस, ठीक है? ना रोहन स्टेज इन अ व्हाइट हाउस एंड ही इज नॉट एन इलेक्ट्रिशियन. तो अगर रोहन इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो वो हाउस नंबर 2 में नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि हाउस नंबर 2 में तो इलेक्ट्रिशियन है. दैट मीन्स रोहन को आपको यहाँ पे हाउस नंबर 4 में रखना पड़ेगा, ठीक है? एंड ही स्टेज इन अ व्हाइट हाउस, मतलब इस हाउस का कलर क्या है? वाइट है, ठीक है? एक और अच्छी हैबिट जो आप बना सकते हो ना, कि आपने जो जो लिख लिया अपने कॉलम में टेबल में फिक्स कर लिया, आप उसको यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो, सो दैट यू नो कि आपके पास क्या बचा है प्लेस करने को. जैसे यहाँ पे एस बचा है, सो एस इज सिमरन, ठीक है? तो मैं सिमरन को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, राइट? सो सिमरन कैन अपीयर हेयर, राइट? उसके बाद यहाँ पे कलर्स, ये तो सारे प्लेस हो गए, प्रोफेशंस आर ऑल प्लेस्ड वेल, है ना? भैया मैं आरती का स्टूडेंट था, इस साल भी आरसी अच्छा नहीं गया भैया, शुड टेक अ ड्रॉप प्लीज सजेस्ट. अनुराग, आप एक बार मुझसे कनेक्ट कर लो दोस्त, ठीक है? जस्ट कनेक्ट विद मी वंस आफ्टर दिस सेशन, है ना? आप मुझे पिंग कर लेना व्हाट्सएप पे, आई विल गिव यू अ कॉल एंड लेट्स डिस्कस. क्योंकि देखो, until unless you have not given the remaining exams, let's not think on the lines of drop, है ना? अभी भी जैड बचा है, स्नैप बचा है, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, कि जब तक आपने सारे एग्जाम्स नहीं दे लिए हैं, until unless अभी भी आपके पास कुछ पेजेस हैं जो आपको अभी भी ओपन करने हैं, राइट? कुछ अभी भी एनवलप्स बचे जो आपको ओपन करने हैं, तो until unless you have not seen all the chances that you have for this year, please do not think on the lines of the next year, है ना? तो हम बात करते हैं इस बारे में अनुराग, ठीक है? लेट्स कनेक्ट वंस आफ्टर दी दिस सेशन हियर, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दैट ग्रीन एंड वाइट इज प्लेस्ड है, तो रेड और ब्लू बचा है. अब मेरे पास कोई भी कंडीशन अभी नहीं बची है जिसको मुझे यहाँ पे आई कैन वर्क आउट विद, ठीक है? तो सिंस देयर इज नो कंडीशन लेफ्ट, दैट मीन्स मैं रेड और ब्लू कलर के हाउस यहाँ पे
फिक्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स आई शुड हैव मल्टीपल केसेस। तो अगर यहाँ पे रेड आएगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ब्लू आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड कलर का हाउस हो जाएगा। एंड दैट इज माई कंप्लीट टेबल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल नाउ आई कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड मार्क ऑल दी आंसर्स हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब एक एक करके क्वेश्चंस को अटैक करते हैं। So the first question is asking me what is the profession of the person who stays in the blue house, ठीक है। तो I'll go back to the slide here। तो blue house में profession, ठीक है। अब since मुझे यही नहीं पता, हाँ अनुराग, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी एट 12:30, ठीक है। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे कलर ही नहीं पता कि ब्लू हाउस हाउस नंबर 1 या हाउस नंबर 2 है, तो मैं प्रोफेशन कैसे बताऊंगा। इट कैन बी आइदर अ लाइब्रेरियन और अ इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। सो दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी CBD, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। हु इज द शेफ अमंग द फोर पीपल। अब हु इज द शेफ अमंग द फोर पीपल, सो वी कैन सी हियर दैट रोहन इज द शेफ अमंग द फोर पीपल, ठीक है। सो आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज डेफिनेटली रोहन हियर, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम, प्रोफेशन एंड हाउस कलर। अच्छा, अभी मैंने देखा कि रोहन जो है, ठीक है, वो शेफ था और वो व्हाइट हाउस में रहता था, राइट। दिस वाज अ स्टेटमेंट दैट वाज क्लियरली गिवन कि रोहन स्टेज इन व्हाइट हाउस एंड ही इज नॉट एन इलेक्ट्रिशियन, है ना। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि रोहन, शेफ और रेड हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, प्रोफेशन, हाउस कलर। इवन अगर मैंने सेट को सॉल्व नहीं किया होता, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ लिया होता कि रोहन जो है वो व्हाइट हाउस में रहता है ना, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिया है कि रोहन रेड हाउस में है, दिस इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो विदाउट इवन सॉल्विंग द सेट आई कुड हैव मार्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर एज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाय तन्मय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, राइट। नाउ हु लिव्स इन द थर्ड हाउस फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड हाउस फ्रॉम द लेफ्ट। सो थर्ड हाउस दैट इज हाउस नंबर 3, और हाउस नंबर 3 में कौन रहता है, कादिर रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली कादिर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस वाज अ इजी सेट, ठीक है। यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि आपको मैं यूज टू कराऊं विद ऑल द कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दैट यू विल कम अक्रॉस इन द द लीनियर अरेंजमेंट के सेट्स, ठीक है, एंड हाउ टू डील विद देम। तो पहले एक बेसिक नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से, ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन वील बी कंडक्टिंग क्लासेस फॉर LRDI, जहाँ पे हम आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, राइट, कैसे आपको प्रोसीड करना है विद डिफरेंट सेट्स, और धीरे धीरे जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा तो आप ईजिली उसको अडॉप्ट कर पाओगे, एंड यू विल नॉट फील लाइक कि क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो वो फीलिंग नहीं आए, इसीलिए इसी तरीके से द वे आई हैव कंडक्टेड दिस सेशन टुडे, इन अ सिमिलर फैशन आई विल बी टेकिंग ऑल दी क्लासेस, गिविंग यू अ बिट ऑफ थ्योरी, बिट ऑफ ड्रिल्स इन द इनिशियल क्लासेस, जहाँ पे आप सिर्फ सीखोगे कि कैसे डील करना है स्टेटमेंट्स के साथ, है ना। एंड वंस यू लर्न दोज ड्रिल्स, फिर वी विल मूव टू द एडवांस लेवल सेट्स, राइट। तो दैट इज हाउ वी आर गोना मूव अहेड विद द क्लासेस हियर, ठीक है। So on this note, if you guys have any queries, you can ask me. ठीक है, बैच लॉन्च लाइक आई हैव टोल्ड यू 9 दिसंबर से स्टार्ट है। Admissions already have started, so you can visit our website www.rodha.co.in। वहाँ पे आप जाके you can register for the batch, and trust me, जितना early start करोगे उतना better है। So I in the launch video also I have talked about the the advantages of starting early। आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। You'll have time to solve the very basic things, you'll have time to build your foundation so that वहाँ से आप explode कर पाओ अपने इस course को, ठीक है। So there's a huge advantage of starting early, एंड आई सजेस्ट टू ईच वन ऑफ यू कि अगर आप सीरियस हो, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक कैट 2026, आपको जाना है किसी टॉप 20 स्कूल में, सो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। आप अभी से स्टार्ट करो अपनी प्रेप, ठीक है। एक टाइमलाइन लेके चलो कि फेब मार्च तक मैं अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करूँगा, ठीक है। मार्च से जून तक मैं पूरा रिविजन करूँगा सिलेबस का, एंड जून के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे फोकस करूँगा। तो दैट वे यू विल हैव सो मच ऑफ प्रैक्टिस इन द एंटायर ईयर कि देयर इज़ नो वे कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, राइट। सो यू हैव दिस एडवांटेज एट द मोमेंट, ठीक है। नेवर डिले थिंग्स, अगर कुछ करना है तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। देयर इज नो टुमारो, कि कभी भी कल नहीं आता है, जो है आज ही है, तो आज ही स्टार्ट करना है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू, एंड यू फील दैट दिस इज अ fit in your career wherever you are placed at the moment, then please you can have faith in us, and our results definitely speak for the the quality that we provide, and विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम आपको 100% गाइड करें इन एवरी पॉसिबल वे, एंड द रेस्ट पार्ट इज योर हार्ड वर्क, योर हसल दैट यू विल डू इन द एंटायर, योर डिसिप्लिन फॉर योर प्रेप, ठीक है।
So I hope that we'll very soon meet in the R2 batch. And on this note, I'll end this session here. And I hope there are no doubts in the particular set. Okay, chalo. Thank you so much. Have fun, guys. We'll meet again on 7th with a similar session where I'll, have another puzzle for you guys. And thank you so much. Bye, guys. Goodbye. Thank you, Nilendra. Thank you for being in the session here. And take care. Have a great day ahead.